Hello everyone. My name is Veer. As you already know me, I am working currently as a software developer at Naukri.com, and I am now going to getting aligned with the Knowledge Cache company, where we are going to discuss the beginning of our first course, that is the SQL course. We are going deep dive into the SQL course and going to understand how the things work, what are the different kinds of databases, and the complete SQL course. After which you can master anything about it. Knowledge Cache, as you know, is a personalized mentorship company where our basic goal is to deliver powerful results and we provide one-to-one mentorship. So if you have any doubt after listening to this video, you can directly connect with me on LinkedIn and you can ask me there. So now let's hop into the course. And first of all, I am going to give you the brief topics, like what all things we are going to cover in this course. So let's first of all see what all things we have to learn in this course. So as you can see now on your screen, we are having 4 different modules in SQL course, and these 4 modules are more than sufficient to clear any placements, any kind of your interview prep for any company, for your college subjects, and as well as for GATE exam. So this you can see is a kind of a structured package which can be used for any kind of thing, from college point to your competitive exams to your interview prep. It will be more than sufficient. So first of all, in module 1, we are going to understand what are the different kinds of databases, and basically we are going to understand what is the introduction to SQL, like what is a database and what are the different types of databases. Then introduction to SQL and its real world importance, understanding how the tables work, and installing the SQL tools and running your first query. These all things which we have mentioned in module 1, we are going to discuss it today only in this video itself. Second module which we can see are what are the different types of SQL commands, like SQL data types and constraints, what are the different types of keys, SQL command categories, using where clause for filtering, logical and comparison operators. So this you will be also going to see soon within some days. Then in our module 3, we will go some to advanced topics like how the filtering and sorting the data works. It is very important from interview point of perspective and is used in all the big tech companies. If we talk about all the product based companies from Microsoft to Google to Naukri.com, then I can say PharmEasy, Goldman Sachs, most of these companies, Oracle, use the SQL commands, some or in other domain. So group by clause, order by clause, having clause for sorting and filtering, then groups, aggregate functions like sum, all these things we are going to discuss in our module 3. And in the last module, very important topic, that is how the concept of joins work in depth. Like what is inner join, what is left join, what is right join, full outer join, and real world query examples. After completing these 4 modules, I can also tell you that I will be launching like half an hour video also, where I will be giving you some very good practice questions related to the SQL course, and it will be helpful for your career as well as for college life. So let's start and let's begin. First of all, the introduction to SQL, so that you can understand why SQL is needed. Why we are studying SQL. What is SQL? Because the most important point first of all is to understand why we are studying anything. What is the need for it? So let's first of all understand that thing. This is the module 1, introduction to SQL. So now let's understand what is SQL and why there is a need to study SQL, like what's the purpose for it. So SQL, for first of all we can say, full form stands, it is a structured query language. So from this we can simply say and understand that it is a kind of language. What kind of language? Like we know, Hindi is the national language of our country, where we use this language as a medium to translate with other people. Similarly, Bengali is one language, Punjabi is one language in different regions. So it is one way of communication between different persons. Similarly, here we can understand SQL is a programming language which is used to interact with relational databases. So now this is a good point to note here. First of all, we have understood structured query language is a kind of, or SQL is a kind of programming language which is used to interact with databases. First point, कि with the help of this, इस language के through हम interact कर सकते हैं. Second important point is to note here is that with the help of SQL language, हम सिर्फ relational databases से connect कर सकते हैं,
ना कि नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस से। सो नाउ हियर कम्स द पॉइंट यार कि ये दो तरह के डेटाबेसेस कौन से होते हैं, व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस, पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, वी विल अंडरस्टैंड दिस एज वेल। बट नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया है कि एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विद द हेल्प ऑफ विच हम रिलेशनल डेटाबेसेस में इंटरेक्ट करते हैं। नाउ कम्स द सेकंड ऑपरेशन कि यार जरूरत क्या है एसक्यूएल, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द पर्पस। सो दिस इज द पर्पस। SQL is used to perform CRUD operations. It is also very important point which you should know. कोई भी कंपनी में आप किसी भी जाओगे आपसे पूछ सकता है कि हे नितिन, हे राघव, CRUD operations क्या है। So CRUD therefore stands for create, read, update and delete. These are the four basic operations which we perform on data in DB. This is the simple words I can say कि डेटा के ऊपर जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो ये बेसिक चार ऑपरेशंस हैं जो किसी भी डेटा पे हम परफॉर्म करेंगे डीबी में। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट का क्या मतलब है, एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, एडिंग न्यू रिकॉर्ड्स टू डेटाबेस यूजिंग इंसर्ट स्टेटमेंट। सो दिस इज द स्टेटमेंट इन एसक्यूएल लैंग्वेज जिसके थ्रू हम डेटा क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी हम स्टेटमेंट्स पे नहीं फोकस करेंगे, हम सिर्फ अभी फोकस करेंगे कि हमारे चार CRUD ऑपरेशंस कौन से हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट, जिसके थ्रू हम डेटा ऐड कर सकते हैं डीबी में। सेकेंड रीड, रीड सिंपल मतलब जैसे आई एम रीडिंग द पीपीटी। सो सिमिलरली रिट्रीविंग द डेटा फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग द सिलेक्ट स्टेटमेंट, जिसका सिंपल मतलब क्या है कि डेटाबेस में डीबी में डेटा स्टोर्ड है एंड हमने उसको रीड करना है, हमने उसको देखना है। लाइक अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, हमारी कंपनी लाइक naukri.com में वी हैव thousands of data, we have millions of data, not thousands of data, sorry I want to say we have millions of users of data. So now the thing is that हर पर्सन के पास सिर्फ रीड एक्सेस है। ऐसा नहीं कर सकता कि मैं किसी कंपनी में जाके फॉर एग्जांपल किसी का डेटा अपडेट कर दूं, दैट इज द थर्ड कमांड। अपडेट मींस मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस। सो सिंपली इसका मतलब ये है अपडेट एक्सेस सिर्फ लाइक वीपीज और मैनेजर्स लेवल के पास होगा या डीबीए के पास होगा, तो अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज हैव रीड एक्सेस ओनली। इसका मतलब है आप डेटा सिर्फ पढ़ सकते हो, आप डेटा सिर्फ यूज कर सकते हो। किस फॉर्मेट में है वो, डेट फॉर्मेट है, टाइम फॉर्मेट है, इंटीजर है, फ्लोट है, लाइक दिस, डेसिमल है, दिस इज अपडेट नहीं कर सकते, आप डिलीट नहीं कर सकते। एंड सिमिलरली डिलीट एज एन इंस्टेंस मींस रिमूविंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग द डिलीट कमांड। सो दीज आर द फोर ऑपरेशंस एंड दीज आर द फोर ऑपरेशंस डन यूजिंग दीज फोर स्टेटमेंट्स: इंसर्ट स्टेटमेंट, select statement, update statement and delete statement. So this is the simple meaning of SQL क्या है जो आपको समझ आ गया, CRUD operations क्या है जो भी आपको समझ आ गया, जिससे आपको ये भी पता चल गया पर्पस क्या है एंड इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ कि कोई पूछे यार क्यों पढ़े हम SQL, मतलब और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होंगी। सो रीजन इज दैट SQL एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो सभी कंपनीज फॉलो करती है। सो दैट्स व्हाई it is very important to study. All the big product based companies, all the service based companies are using SQL in some or another form. For example, in data analysis, in migration, in any kind of task. So कहीं ना कहीं ये यूज होता है, so इसलिए जरूरी है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हमने ये तो समझ लिया CRUD operations क्या है, SQL क्या है। So now let's understand what is the importance of SQL in data management. ये भी क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है कि SQL में इंपॉर्टेंस क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस वी नो SQL इज अ पावरफुल टूल और इज अ पावरफुल लैंग्वेज दैट प्लेज अ पिवटल रोल और वाइटल रोल इन डेटा मैनेजमेंट अक्रॉस इंडस्ट्रीज। जो मैं अभी आपको बात कर रहा था कि डेटा मैनेजमेंट में कोई भी रोल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट थ्योरी पर्सपेक्टिव, these 6 points are more than sufficient if you will write in your company or for an interview perspective. Like what's the importance of SQL in data management? So सबसे पहले like now let's study this. So as we can see now here, first of all which I have told it is a standard language for our databases. SQL is the standard language which is used for managing relational databases, which ensures compatibility and consistency across various database systems like MySQL, PostgreSQL, SQLite and SQL Server। क्या मतलब है इसका मैं समझाता हूँ। देखो बात क्या है, सिंस वी हैव डिफरेंट डेटाबेसेस वर्ल्ड वाइड, थ्रू आउट कंपनी
डेटाबेसेस डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक MySQL इज ऑल्सो वन रिलेशनल डेटाबेस, PostgreSQL इज ऑल्सो वन रिलेशनल डेटाबेस. विद टाइम और नए डेटाबेसेस आ रहे हैं, बट द थिंग इज दैट लैंग्वेज एक ही है. सो इसलिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई भी बहुत अच्छा आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपसे कोई भी ये क्वेश्चन पूछे कि हे वीर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MySQL एंड SQL, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Oracle एंड SQL, सो आप क्या आंसर करोगे? MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस है, Oracle एक रिलेशनल डेटाबेस है, SQLite एक रिलेशनल डेटाबेस है, जबकि SQL एक डेटाबेस नहीं है. SQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं. दिस इज द परफेक्ट आंसर. एंड जब आप ये इंटरव्यू को सुनाओगे तो उसको पता चलेगा कि आपको इन डेप्थ नॉलेज है, यू नो द बेसिक्स कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेटाबेस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लैंग्वेज. दैट इज द थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल पॉइंट आपको पता चल गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ SQL क्या है. इट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर डेटाबेसेस. So now let's understand second point. With the help of SQL, we can do efficient data retrieval. हमने ये तो पढ़ लिया अभी कि with the help of SQL हम read operations perform कर सकते हैं and data fetch कर सकते हैं. But now the point here is that with the help of SQL we can do efficient data retrieval because we don't want to retrieve data slowly. जैसे आप खुद ही देखते हो कोई भी क्वेरी रन हो रही है in production DB or in live environment जहाँ पर मतलब millions of transactions are taking place, like if we talk about Flipkart, Amazon, जहाँ पर per second throughout India so many transactions are taking place, there the important time is the time. So time बहुत crucial है. So हमारा most important motive होता है with the help of SQL we have to query vast amounts of data and also enabling complex data retrieval operations in minimal time. So major objective is this only कि we have to retrieve data, first of all, vast amount of data in an efficient manner in minimal time. So three objectives हैं कि पहली बात efficient manner में data आना चाहिए, minimal time में आना चाहिए and millions of data आना चाहिए. So that is the point. Third point is that with the help of SQL, we can say we can achieve structured data organization. Like SQL ensures that the data is stored in a structured format. So now that is the important point. कि whenever the companies, all the companies in which the data is stored in a structured format, making it easier to manage the relationships between table and maintain data integrity. So ये थोड़ा पॉइंट मैं समझ सकता हूँ, आपको नहीं समझ आएगा. With the coming lectures you will be able to understand it more कि SQL जो है वो मोस्टली स्ट्रक्चर्ड डेटा पे वर्क करता है एंड डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में काम आता है. स्ट्रक्चर्ड डेटा की अगर मैं एग्जांपल दूं, बैंकिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल, एक बैंकिंग सिस्टम एग्जांपल है स्ट्रक्चर्ड डेटा की, जहाँ पर सब यूजर्स का डेटा पड़ा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन देयर अकाउंट नंबर, देन देयर अकाउंट मनी. सो दिस मीन्स दैट अ स्ट्रक्चर्ड फिक्स्ड ऑर्डर इज देयर फॉर ईच वन. सो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट एनी बैंकिंग सिस्टम इज लाइक वन एग्जांपल, देन वी कैन से फूड मैनेजमेंट सिस्टम इज वन एग्जांपल, जहाँ पर फिक्स्ड डेटा है कि ये ऑर्डर हुई चीज, ये उसकी क्वांटिटी है, ये उसका रेट है, ये टोटल प्राइस हुआ. सो दीज फील्ड्स आर फिक्स्ड. बट इफ आई टॉक अबाउट अ नॉन रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस की क्या एग्जांपल है, जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट 99acres.com, 99 एकर्स में फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉपर्टी पोस्ट हो रही है, उसमें फील्ड्स फिक्स्ड है. चलो मान लिया हमने कि प्रॉपर्टी टाइप 2 BHK 3 BHK लोकेशन, बट द थिंग इज दैट देयर आर सिंस सो मेनी फील्ड्स लाइक प्रॉपर्टी लोकेशन क्या है, प्रॉपर्टी कितने ईयर्स की हो गई है, लाइक देयर आर वी कैन से अराउंड 200 फील्ड्स. सो इन दैट केस स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑर्गेनाइज करना बहुत डिफिकल्ट है. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी डोंट नो कि हमने कौन सा रखना है कौन सा नहीं. सो देन बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो दैट्स व्हाई देयर वी मोस्टली ट्राई टू यूज बोथ मिक्स, मतलब MySQL भी यूज कर सकते हैं, MongoDB भी यूज कर सकते हैं, कुछ के लिए MongoDB, so that we can manage most of the fields because some fields are optional, some fields are compulsory, but we will not go into that depth. सिंपल मतलब सिंपल आपको ये समझाना चाहूँगा कि SQL के साथ हम स्ट्रक्चर्ड डेटा को परफेक्टली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक अच्छे मैनर में जो डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करता है. देन डेटा मैनिपुलेशन, ये भी आपको बता दिया है कि विद द हेल्प ऑफ SQL वी कैन परफॉर्म ऑल द डेटा मैनिपुलेशन ऑफ डेटा with the help of insert command, delete command, update command, which helps in making integral for dynamic data handling. Dynamically हम डेटा को हैंडल कर सकते हैं. फिर ये भी आपको पॉइंट बता दिया है
with the help of SQL commands like where, order by, group by, we can perform extraction in a meaningful, insightful manner from raw data by filtering and organizing the data effectively. So that is the fifth point, that is data filtering and sorting. And the last sixth point is multi-user access. सबसे अच्छा point and काफी important point कि SQL also enables concurrent access to data by multiple users while maintaining data consistency and security, which is crucial for collaborative environments. So इसकी मैं एक बहुत अच्छी example आपको देता हूँ. Like, see, हम ATM में जाते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमने अपने अकाउंट से डिडक्ट किए 500 रुपीज एंड हमारे पास इनिशियल पैसे थे बैंक अकाउंट में 1000. सो अगर हम 500 रुपए अपने बैंक से डिडक्ट कराएंगे और बैंक बैलेंस चेक करेंगे, इट विल बी 500. ऐसा कभी नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ मल्टीपल यूजर्स, लाइक अगर मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दूं, आप वो भी दिल्ली में एंड यू आर परफॉर्मिंग सम ट्रांजेक्शन ऑन योर अकाउंट थ्रू ATM. एंड सिमिलरली आपकी फैमिली में कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है फ्रॉम योर होम टाउन विच इज इन अनदर सिटी ऑनलाइन. अगर अब वो दोनों सेम टाइम पे भी ट्रांजैक्शंस करेंगे, देन आल्सो द अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर इनिशियल 1000 अमाउंट ओनली इफ द प्रीवियस ट्रांजैक्शन इज नॉट अकर्ड. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर उसने 500 की करी और उसने 700 की करी तो 500 700 मिला के 1000 से कट भी गए दोनों. नो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एट अ टाइम ओनली वन ट्रांजैक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड दिस concept we can refer to as atomicity. Atomicity simply means that only one transaction will be occurring at a time or no transaction at all. It cannot be possible that two transactions are taking place simultaneously. या तो कोई भी transaction नहीं होगी या सबसे पहले one transaction will be deducted, 1000 से minus 500 होगा 500 and then 500 से next 700 deduct होगा, जो कि नहीं possible. So error आएगा कि re-enter the amount which you have to deduct from your account. दैट इज द मीनिंग कि SQL के साथ हम मल्टीपल यूजर्स डेटा को एक्सेस कर सकते हैं बट अपडेट नहीं कर सकते. रीड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम, अपडेट ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड. ओनली वन यूजर विल बी परफॉर्मिंग बिकॉज अदरवाइज द प्रॉब्लम विल अकर, which is a kind of concept of operating system if we discuss more in detail. So now I hope you have understood what all the concepts related to SQL basics. कि SQL क्या होता है, क्यों जरूरत है एंड इंपॉर्टेंस क्या है, बड़ी कंपनी सब कुछ आपको बता दिया है. चलो अब SQL समझ लिया है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आल्सो व्हाट इज डेटाबेस एंड व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस एज वी नो इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड आप पिक्चर भी ऊपर देख सकते हो कि इस कुछ फॉर्मेट का डेटाबेस होता है. बहुत सारी कंपनीज, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं, मेनी कंपनीज मेंटेन देयर डेटा सर्वर्स थ्रू आउट अवर इंडिया. Like most of the companies have their data center either in Bombay, Mumbai, like अब AWS की बात करें, बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, have their data centers and databases warehouses in Mumbai, in Hyderabad, in Bangalore, some in Noida, so like this. So that is the concept. And database, as we simply know, is a collection of data in a format that can be easily accessed. So this is a theoretical language. कि simply data का collection है in a specific format that can be easily accessed. And the software application which is used to manage the database is known as database management system. So चलो आपको ये भी definition साथ में बता दी कि database management system क्या है. तो अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि what is the difference between database and database management system. database एक क्या है, को टूल है. डेटाबेस क्या है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है. वी कैन से, मतलब सॉफ्टवेयर तो नहीं मैं बोलूंगा, या इट इज अ हार्डवेयर. नो, इट इज नॉट अ सॉफ्टवेयर. नो, आई वांट टू करेक्ट माय पॉइंट हियर. डेटाबेस एक हार्डवेयर है वेयर लार्ज अमाउंट्स ऑफ मिलियंस ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन सम सर्वर इन सम रिमोट लोकेशन. बट ये भी मैं बोल सकता हूँ, मतलब या दिस आई कैन आल्सो से कि नाउडेज द कंपनीज आर आल्सो, वी कैन से यूजिंग द डेटाबेसेस वर्चुअली एज वेल. सो डेटाबेस वी कैन से काइंड ऑफ बोथ है, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है. बड़ी कंपनीज हार्डवेयर भी लाइक फिजिकली भी उनको लोकेट कर रही हैं एंड सम स्मॉल कंपनीज आर आल्सो यूजिंग वर्चुअल MongoDBs. वी नो MongoDB Compass, MongoDB Atlas, ठीक है, Post DB is there, so many new, Redis is there, like which is an in-memory database. So database is a hardware and a software both, we can say, with the help of which we can store huge amount of data. But database management system, I can say 100% sure, is a software application which is
यूज टू मैनेज अवर डीबी। तो अगर मैं सिंपल आपको एक पाई चार्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक इंटरमीडिएटली लेयर है बिटवीन द यूजर एंड द डीबी। अगर यहाँ पर डीबी है तो यूजर कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डीबी, यूजर will interact with database management system and database management system will perform all the operations with the DB. So database management system we can say is a kind of an intermediately layer जो हमारे DB को मैनेज करता है। तो यूजर कभी भी अपडेट ऑपरेशन SQL क्वेरी लिखेगा। नाउ अगर मैं आपको इन डेप्थ थोड़ा बताने जाऊं तो यूजर SQL क्वेरी फॉर एग्जांपल उसने लिखी, तो SQL क्वेरी डायरेक्ट DB पे नहीं चलेगी, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की लेयर होगी, वो उसको एक्सेस करके भेजेगी। सो दैट वी कैन से सम privacy and security is maintained. It is kind of following a 3-tier architecture which is followed across all the companies nowadays. So that is the concept. तो I hope कि मैंने अभी तक काफ़ी अच्छे से आपको समझाया होगा सब कुछ इन सिंपल वर्ड्स कि SQL क्या है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कैसे वर्किंग हो रही है, एंड लिटिल बिट नॉलेज। नाउ इन अवर नेक्स्ट स्लाइड, as you can see, we are also going to understand very important points कि टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, एंड जो मैं पॉइंट आपको बता रहा था कि रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस में डिफरेंस क्या है। कोई अगर आपसे पूछे कि वीर व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस, व्हाट इज नॉन रिलेशनल डेटाबेस, क्या चीज़ है, चलो ये भी डिस्कस करते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, क्योंकि अगर आप आई कैन ऑल्सो टेल यू द रिसोर्सेज, लाइक इफ यू वांट कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज, कि अगर आपको लाइक कंप्लीट इन डेप्थ डिफरेंस चाहिए, सो यू कैन रेफर GFG और यू कैन पिंग मी ऑन माय लिंक्डइन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इफ यू हैव एनी डाउट। यहाँ पर मैंने बेसिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अदरवाइज देयर विल बी सम मोर डिफरेंसेस आल्सो, लाइक ऑन स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी एंड सम अदर फैक्टर्स, बट आई हैव हियर मेंशन्ड द सिंपलेस्ट डिफरेंस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनल डेटाबेस इज अ काइंड ऑफ डेटाबेस वेयर द डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जबकि नॉन रिलेशनल डेटाबेस इज अ डेटाबेस वेयर द डेटा इज नॉट स्टोर्ड इन टेबल्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस में डेटा टेबल्स में नहीं स्टोर्ड, किसी भी फॉर्म में स्टोर हो सकता है। बहुत सारे लोग ये आंसर गलत कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसमें डिफरेंस क्या है। वी नो कि रिलेशनल डेटाबेसेस की एग्जांपल है ये कि MySQL, SQL सर्वर, Oracle एंड PostgreSQL, एंड इसको याद कर लो अभी चार, क्योंकि these three are very important. MySQL, Oracle and PostgreSQL, and mostly these are used. Microsoft SQL Server बहुत कम यूज होता है, very less companies are using it. Might be used, but most of the companies which I know use these three only. Non-relational database में अब सिर्फ MongoDB नहीं आता, ये important point है। Mostly बाकी लोग क्या कहते हैं कि data NoSQL database is a database where the data is stored in the form of key columns, or we can say in the form of map structure, की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में हम स्टोर करते हैं। रॉन्ग है, क्योंकि यार देखो डिफरेंस ये है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस और विच इज आल्सो नोन एज NoSQL डेटाबेस मींस डेटा टेबल में स्टोर्ड नहीं है। अब वो स्टोर की वैल्यू पेयर में भी हो सकता है, वो डेटा ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में भी स्टोर हो सकता है, वो डेटा इन मेमोरी भी स्टोर हो सकता है, मतलब देयर आर मिलियंस ऑफ इट, वो डेटा एरे के फॉर्म में भी स्टोर हो सकता है। सो यू हैव टू से डेटा इज नॉट स्टोर्ड इन टेबल्स, हो किसी भी फॉर्मेट में सकता है। सो अगर कोई MongoDB और MySQL में डिफरेंस पूछेगा, देन वो डिफरेंस है कि MySQL डेटाबेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस in which the data is stored in the form of tables, in the form of rows and columns, कि rows and columns होती है। But MongoDB एक क्या है, NoSQL डेटाबेस है, एक नो रिलेशनल डेटाबेस है जहाँ डेटा स्टोर होता है in the form of की वैल्यू पेयर्स। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, की वैल्यू पेयर्स भी एक अच्छी टर्म नहीं होगी। अच्छी टर्म क्या होगी, डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कलेक्शंस, कि इन अ MongoDB डेटाबेस वी हैव मल्टीपल कलेक्शंस एंड इनसाइड ईच कलेक्शन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आर देयर। दैट इज विल बी अ गुड डेफिनेशन। और अगर मैं एग्जांपल भी दूं आपको एक MongoDB भी कि लाइक एक MongoDB की कलेक्शन में मतलब कैसे कैसे चीजें वो करेंगी, देन आई कैन से लाइक एक MongoDB डेटाबेस है। इन MongoDB डेटाबेस वी कैन हैव मल्टीपल कलेक्शंस, लाइक HR डिपार्टमेंट एक कलेक्शन हो गई, सेल्स डिपार्टमेंट एक कलेक्शन हो गई, सॉफ्टवेयर टेक डिपार्टमेंट एक कलेक्शन हो गई, ऑप्स टीम एक कलेक्शन हो गई। अब हर एक कलेक्शन के अंदर मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे। लाइक HR डिपार्टमेंट के अंदर अगर मान लो 100 एम्प्लॉइज है तो 100 डॉक्यूमेंट्स होंगे इनसाइड दैट HR कलेक्शन ऑफ MongoDB डेटाबेस
जो MongoDB आपकी कंपनी का है. So I can here refer to as my company Naukri. So Naukri refers to DB, Naukri DB, HR, sales, ops, documents, and inside that multiple million of documents which will be referring to some people or employee or anything. And similarly अगर मैं बात करूँ रिलेशनल डेटाबेस की, इसमें भी सेम चीज होगी कि नौकरी का एक डेटाबेस होगा जो कि MySQL डेटाबेस होगा, उसके अंदर मिलियंस ऑफ टेबल्स होंगे जो कि कैटेगराइज होंगे. लाइक HR का टेबल है तो HR की सारी चीजें, HR table will be there, sales table will be there, ops table will be there, because we know each database can have multiple tables and हर टेबल के अंदर फिर उनके रिकॉर्ड्स होंगे, HR name, HR info, HR salary, years of experience, like this. This is a simple meaning. So ये भी आपको इन डेप्थ बता दिया. Now the important point here to note is that what is the concept of relational databases. अगर हमारे को ये समझ आ गया, क्योंकि हम इस कोर्स में SQL के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, हम SQL के बारे में जानना चाहते हैं, so that's why we will work only here in this course about the relational database, कि we use SQL to work with relational databases. So इसलिए हम अभी यहाँ पर NoSQL database को मिस कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं. हम आने वाले टाइम में इसके भी कोर्सेज लेके आएंगे कि MongoDB कैसे वर्क करता है, अग्रेशन पाइपलाइंस क्या है, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा A to Z, द कंप्लीट नॉलेज व्हिच आई एम हैविंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है. बट नाउ सिंस हियर द कोर्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू SQL ओनली, सो दिस इज द सिंपल मीनिंग कि हियर वी हैव टू डील ओनली विद रिलेशनल डेटाबेसेस. ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर. यही सेम एग्जांपल मैंने आपको पिछली स्लाइड्स के पहले ही बता दी एंड आपको दोनों में डिफरेंस एक्सप्लेन कर दिया कि रिलेशनल डेटाबेस में सिंपली डेटाबेस होगा जो कि कंपनी को रेफर करेगा. लाइक naukri.com का अपना डेटाबेस होगा, माइक्रोसॉफ्ट का अपना डेटाबेस होगा, गूगल का अपना डेटाबेस होगा. एंड ये डेटाबेस ही एक तरीके से मैं कह रहा हूँ अपनी कंपनी का एसेट. जितना बड़ा कंपनी का डेटाबेस है उतनी उसके पास पावर है. Why Google is the best company in the world? Because it has the data of millions of people. हर दुनिया का बंदा गूगल पर है, so that's why it makes it the number one company of world. So that is the point. तो इसलिए हर डेटाबेस के अंदर we know, we have discussed, multiple tables will be there, not 2, not 3. It can have hundreds of tables, thousands of tables I can say, and inside each table we will having multiple amount of data. But now क्योंकि ये एक relational database है, so ये fixed है कि जो ये डेटा होगा इन टेबल्स में ये रोज कॉलम्स में ही फिक्स्ड होगा, प्रेजेंट होगा. ये फिक्स्ड है, दैट इज फिक्स्ड. द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इज फिक्स्ड. डेटा कैन बी, ठीक है. तो ये भी आपको समझ आ गया कि डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या है रिलेशनल डेटाबेसेस का. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. एंड ये एग्जांपल भी आप देख लीजिए, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी एग्जांपल मेंशन की हुई है मैंने. व्हाट इज अ टेबल? अगर टेबल की बात करें, ये भी आपसे पूछा तो टेबल क्या है? रिलेशनल डीबी की एक एंटिटी है, रिलेशनल डीबी का एक स्मॉलर यूनिट है वी कैन से, एंड मिलियंस ऑफ टेबल्स कैन बी प्रेजेंट इनसाइड अ सिंगल डीबी एंड दीज आर रोज एंड कॉलम्स जो मैं आपको बताऊं. सो दिस इज अ रो. अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में इनिशियली, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे होंगे रोज किसको मैं बोल रहा हूं, ऑल द हॉरिजॉन्टल लाइंस रेफर टू रोज, all the vertical lines refer to columns. So this simply you can remember a key point, VCHR. VCHR. Repeat after me. VCHR. Vertical column, horizontal row. Vertical column, horizontal row. Vertical column, horizontal row. इससे आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं कि रोज मतलब हॉरिजॉन्टली, कॉलम्स मतलब वर्टिकली. VCHR. This. So here, what are the columns? Roll number is one column, name is one column, class is one column, date of birth is one column, gender is one column, city is one column, marks are one column. And similarly, multiple rows are there. One and the X date of birth. So these are the rows. So simply I can say how many columns and rows are there. चलो मैं आपको 30 seconds की break देता हूँ. Simply tell me and अपना let's match the answer. How many rows and columns are there in student table? I am giving a 10-second pause. Answer करके बताओ. Hope आपने कर लिया होगा आंसर एंड सोच लिया होगा. So yes, I think if you have answered this, you are right. There are 8 rows and there are 7 columns. There are 8 rows
and there are 7 columns. रोज फाइंड करना इजी है क्योंकि हमेशा एक की वैल्यू तो होगी या एक प्राइमरी वैल्यू तो होगी जिससे आपको पता चल जाएगा. सो रोज सिंपली यू कैन सी बेस्ड ऑन रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर हमेशा एक यूनिक वैल्यू है, कभी सेम नहीं हो सकती. सो रोज कैन बी वेरी इजीली फाइंड. 8 columns you can write 1 2 3 4 5 6 7. Therefore answer is 8 rows 7 columns. Okay, so now in our next video we are going deep dive into SQL queries, and we are going to give you the live demonstration of how the database is created, how the tables are created, and how we can insert the data. So let's wait for the next video, and मैं आपको next video में पूरा live demonstration दूंगा on the MySQL online server, and you will be creating our first database, which is amazing thing. So let's wait for it. Till then, see you, goodbye, and take care.